آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کی تہذیب، ثقافت اور تاریخ دنیا کی تمام قومیتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم رشیا کی سیر کریں گے۔ ناظرین کرام، رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی سرزمین اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا چاہے تو اسے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ملک یورپ کے مغربی حصے سے شروع ہو کر ایشیا کے انتہائی مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ روس کا کل رقبہ تقریباً 17 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو اسے زمین پر موجود تمام ممالک میں سب سے بڑا بناتا ہے۔ اس کی سرزمین اتنی وسیع ہے کہ اس میں 11 مختلف ٹائم زون موجود ہیں، یعنی جب روس کے ایک حصے میں صبح ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں رات ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وسعت روس کی طاقت کا ایک بڑا راز بھی ہے، کیونکہ اس وسیع جغرافیے نے صدیوں سے دشمنوں کے لیے اس ملک کو فتح کرنا تقریباً ناممکن بنا رکھا ہے۔ روس کی سرحدیں دنیا کے کئی اہم ممالک سے ملتی ہیں، جن میں یوکرین، منگولیا، قازقستان، چائنا، فن لینڈ اور ناروے بھی شامل ہیں۔ اس کا دارالحکومت ماسکو ہے، جو نہ صرف روس کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ دنیا کے اہم سیاسی اور معاشی مراکز میں بھی شمار ہوتا ہے۔ روس کی تاریخ بہت قدیم اور پیچیدہ ہے۔ ابتدائی دور میں اس خطے میں مختلف قبائل آباد تھے، لیکن 9ویں صدی میں ایک ریاست قائم ہوئی جسے کیویان رس کہا جاتا تھا اور اس کا مرکز موجودہ کیو شہر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کمزور ہو گئی اور 13ویں صدی میں منگول سلطنت نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ منگولوں نے تقریباً 200 سال تک روسی علاقوں پر حکمرانی کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ روسی ریاست دوبارہ ابھری اور طاقت کا مرکز آہستہ آہستہ ماسکو بن گیا۔ یہاں کے حکمرانوں نے مختلف علاقوں کو متحد کیا اور آخر کار منگولوں کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد روس ایک مضبوط سلطنت بن کر ابھرا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں روس کو عالمی طاقت بنانے میں سب سے اہم کردار پیٹر دی گریٹ نے ادا کیا۔ اس نے روس کو جدید بنانے کے لیے یورپ کا سفر کیا، وہاں کے سائنسی اور فوجی نظام کا مطالعہ کیا اور واپس آ کر روس میں بڑی اصلاحات کی۔ اس نے ایک نیا شہر بھی بسایا جسے سینٹ پیٹرز برگ کہا جاتا ہے، جو بعد میں روس کا دارالحکومت بنا اور یورپی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ بعد میں کیتھرین دی گریٹ کے دور میں روس کی سرحدیں مزید پھیل گئیں اور روس ایک وسیع سلطنت بن گیا۔ اس دور میں روس یورپ اور ایشیا دونوں میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ 20ویں صدی میں روس کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ رشین ریولوشن تھا۔ اس انقلاب نے صدیوں پرانا راج شاہی نظام ختم کر دیا اور ایک نئی ریاست وجود میں آئی جسے سوویت یونین کہا جاتا ہے۔ سوویت یونین بہت تیزی سے دنیا کی سپر پاور میں شامل ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران سوویت یونین نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں نازی جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو یہ جنگ تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ میں کروڑوں لوگ مارے گئے، لیکن آخر کار سوویت یونین نے جرمنی کو شکست دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ روس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تاریخ میں اتنے طاقتور حکمران اس ملک کو فتح کرنے میں کیوں ناکام رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ روس کا وسیع جغرافیہ، سخت موسم اور عوام کی مزاحمت ہے۔ 1812 میں نپولین بوناپارٹ نے اپنی عظیم فوج کے ساتھ روس پر حملہ کیا، لیکن روس کی شدید سردی اور طویل فاصلے نے اس کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح 1941 میں ایڈولف ہٹلر نے بھی روس پر حملہ کیا، لیکن جرمن فوج کو بھی وہی مشکلات پیش آئیں جو نپولین کی فوج کو پیش آئی تھی۔ روس کی سردی، وسیع زمین اور سخت مزاحمت نے جرمن فوج کو شکست دے دی۔ روس کی فوجی طاقت آج بھی دنیا میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ روس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ جوہری ہتھیار موجود ہیں اور اس کی فوج جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ روس کے جدید دفاعی نظاموں میں S-400 شامل ہے، جو دنیا کے طاقتور ترین فضائی دفاعی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح RS-28 سرمت ایک جدید بین البراعظمی میزائل ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس کی جدید فوجی ٹیکنالوجی میں ہائپر سونک میزائل بھی شامل ہیں، جو آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ ان میزائلوں کو روکنا موجودہ دفاعی نظاموں کے لیے بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ روس کی معیشت قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت مضبوط ہے۔ یہاں تیل، گیس،
कोयला, सोना और दीगर मदनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के बरामद कुनिंदगान में से एक है और उसकी बड़ी तवानाई कंपनियां आलमी तवानाई मार्केट में अहम किरदार अदा करती हैं। रूस का सबसे पुरअसरार खित्ता साइबेरिया है। साइबेरिया एक ऐसा वसी इलाका है जो लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ घने जंगलात, बर्फ से ढके मैदान और दूर दराज इलाके मौजूद हैं जहाँ इंसानों की आबादी बहुत कम है। साइबेरिया के बारे में कई पुरअसरार कहानियाँ भी मशहूर हैं। सोवियत दौर में साइबेरिया में कई खुफिया शहर भी बनाए गए थे जिन्हें नक्शों पर कभी भी जाहिर नहीं किया गया था। इन शहरों में फौजी तहकीक, जोहरी हथियारों की तैयारी और खुफिया साइंसी तजर्बात किए जाते थे। इन खुफिया शहरों में रहने वाले लोग बाहर की दुनिया से तकरीबन कटकर जिंदगी गुजारते थे। रूस के बारे में एक और हैरान कुन पहलू रूसी माफिया है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1990 की दहाई में रूस में मुआशी बहरान पैदा हो गया और इसी दौरान मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोह ताकतवर हो गए। रूसी माफिया ने कारोबार, सियासत और बैनुल अक़वामी जराइम में अपना असर व रसूख बढ़ा लिया। आज के दौर में रूस आलमी सियासत में एक अहम ताकत के तौर पर मौजूद है। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन गुज़िश्ता कई सालों से रूस की क़यादत कर रहे हैं और उनके दौर में रूस ने अपनी फौजी और सियासी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश की है। रूस की सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी इतनी ही दिलचस्प है जितनी इसकी तारीख़ और सियासत। रूस के लोग आम तौर पर सादा लेकिन मजबूत तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं। सर्द मौसम की वजह से यहाँ के घरों को ख़ास अंदाज में बनाया जाता है ताकि अंदर गर्मी बरकरार रह सके। रूस में सर्दियाँ बहुत तवील और सख्त होती हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर वक्त घरों में या गर्म कैफ़े और रेस्तोरानों में गुजारते हैं। रूसी लोग ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद करते हैं और चाय पीना इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अक्सर घरों में मेहमान आए तो सबसे पहले चाय और मीठा ही पेश किया जाता है। रूस के खाने भी इसके मौसम और जोग्राफिया की तरह बहुत मुनफरिद हैं। रूस के मशहूर खानों में बोर्शचेस्ट बहुत मशहूर है, जो चिकंदर से बनने वाला एक सूप होता है और उसे आमतौर पर खट्टी करीम के साथ पेश किया जाता है। इस तरह पलमिनी रूसी डम्पलिंग्स हैं जिनके अंदर गोश्त भरा हुआ होता है और उन्हें उबाल कर या फ्राई कर कर खाया जाता है। रूस का एक और रिवायती खाना बीफ स्ट्रोगानोफ है, जिसमें गोश्त को करीमी सास के साथ पकाया जाता है और उसे चावल या पास्ता के साथ पेश किया जाता है। इस तरह बलिनी नामी पतले पैनकेक्स भी रूस में बहुत मशहूर हैं, जिन्हें शहद, मक्खन या करीम के साथ खाया जाता है। रूस के लोग आमतौर पर सख्त मेहनत करने वाले और तालीम याफ्ता समझे जाते हैं। बड़े शहरों जैसे कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार और जदीद है, जहाँ बुलंद इमारतें, मेट्रो सिस्टम्स, यूनिवर्सिटियाँ और बड़ी सनतें मौजूद हैं। लेकिन अगर रूस के दूर दराज इलाकों, ख़ास तौर पर साइबेरिया की बात की जाए तो वहाँ ज़िंदगी काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ के लोग ज़्यादातर कुदरती माहौल के साथ जुड़े हुए होते हैं। शिकार, माहीगीरी और जंगलाती वसाइल पर ये लोग इन्हिसार करते हैं। रूस की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ की सकाफ़त, अदब, मौसीकी और फ़नून से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है। रूसी अदब ने दुनिया को अजीम मुसन्निफ़ दिए हैं। इन मुसन्निफ़ीन की किताबें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और उन्हें आलमी अदब के शाहकारों में शुमार किया जाता है। इसी तरह रूस के लोग त्योहारों और सकाफ़ती तक़रीबात को भी बड़ी खुशी से मनाते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों के इख्तिताम पर मनाया जाने वाला त्यौहार बहुत मशहूर है, जिसमें लोग रिवायती खाने खाते हैं, मौसीकी सुनते हैं और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं। ये त्यौहार दरअसल बहार के आने की खुशी में मनाया जाता है। रूस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत मुनफरिद और दिलचस्प है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। ये रेलवे लाइन तकरीबन 9000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है और मॉस्को शहर से शुरू होकर रूस के मशरिकी शहर व्लादिवोस्टोक तक जाती है। इस सफ़र को मुकम्मल करने में तकरीबन एक हफ्ता लगता है और यह दुनिया के तवील तरीन और दिलचस्प रेलवे सफ़रों में शुमार होता है। रूस का एक और हैरानकुन पहलू इसकी फितरत और जंगली हयात है। यहाँ दुनिया के
सबसे बड़े जंगलात यानी ताइगा पाए जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी रहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर साइबेरियन टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है और उसे रूस के जंगलात का बादशाह भी कहा जाता है। इसी तरह ब्राउन बेयर भी रूस की अलामत समझा जाता है और यह जानवर रूसी सकाफत और कहानियों में बहुत नुमाया है। रूस की तालीम और साइंस के मैदान में भी बड़ी कामयाबियाँ रही हैं। सोवियत दौर में रूस ने साइंस, इंजीनियरिंग और तिब के शोबों में हैरानकुन तरक्की की थी। रूस के साइंसदानों ने खलाई तहकीक, जोहरी तवानाई और रियाजी के मैदानों में कई अहम कारनामे सर अंजाम दिए। इसी साइंसी तरक्की की वजह से रूस आज भी खलाई टेक्नोलॉजी में एक अहम ताकत समझा जाता है। रूस के शहरों की तामीर और फन तामीर भी बहुत मुनफरिद है। ख़ास तौर पर मॉस्को में मौजूद सेंट बेसिल कैथेड्रल अपनी रंगीन गुंबदों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरह सेंट पीटर्सबर्ग को रूस का सकाफती दारुल हुकूमत कहा जाता है, जहाँ खूबसूरत नहरें, तारीखी मोहल्लात और अजायब घर मौजूद हैं। रूस के लोगों की ज़िंदगी में खेल भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर आइस हॉकी रूस का बहुत मकबूल खेल है और रूसी टीमें आलमी सतह पर बहुत मजबूत समझी जाती हैं। इसी तरह फुटबॉल और शतरंज भी यहाँ बहुत मकबूल हैं और रूस ने शतरंज की दुनिया को कई अजीम खिलाड़ी दिए हैं। रूस के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी हैं जो आम तौर पर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होती। मिसाल के तौर पर रूस में एक बहुत मुनफरिद रिवायत है जिसमें लोग नए साल को बहुत बड़े त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। दरअसल सोवियत दौर में मजहबी त्योहारों पर पाबंदियाँ आई थी, इसीलिए क्रिसमस की जगह नए साल की तकरीब सबसे बड़ी खुशी का मौका बन गई। आज भी रूस में नए साल की रात बहुत शानदार अंदाज में मनाई जाती है और लोग घरों में खसूसी खाने तैयार करते हैं और तोहफे देते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। रूस में एक और दिलचस्प चीज़ इसका मेट्रो सिस्टम है, ख़ास तौर पर मॉस्को का मेट्रो सिस्टम। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन मेट्रो स्टेशन में शुमार होता है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो किसी शाही महल या अजायब घर की तरह नज़र आते हैं, जहाँ संगे मरमर की दीवारें, बड़े बड़े फानूस और खूबसूरत आर्ट वर्क मौजूद होता है। इसी वजह से बाज़ लोग मॉस्को के मेट्रो को ज़ेरे ज़मीन महल भी कहते हैं। रूस में एक अजीब लेकिन दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यहाँ के बाद शहरों में सर्दियों में दरिया और झीलें मुकम्मल तौर पर जम जाती हैं। मिसाल के तौर पर लेक बाइकाल सर्दियों में इस कदर मजबूत बर्फ में तब्दील हो जाती है कि लोग इसके ऊपर गाड़ियाँ भी चला लेते हैं। यह झील दुनिया की सबसे गहरी झील भी समझी जाती है और उसमें ज़मीन के ताज़ा पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद है। रूस में एक और मुनफरिद रिवायत ये है कि जब कोई शख्स लंबे सफ़र पर जाने लगता है तो ख़ानदान के अफराद चंद लम्हों के लिए खामोशी से उस शख्स के गिर्द बैठ जाते हैं। रूसी सकाफत में ये समझा जाता है कि इससे सफ़र महफूज और खुशगवार रहता है। रूस के बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ बहुत से ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सर्द तरीन आबाद इलाकों में शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर याकुटस्क को दुनिया के सर्द तरीन शहरों में से एक समझा जाता है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 या 50 डिग्री तक गिर सकता है। इसके अलावा रूस में कुदरती अजायबात भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ हज़ारों दरिया और झीलें मौजूद हैं और दुनिया के सबसे बड़े जंगलात भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इसी वजह से रूस को बाज़ औक़ात ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जंगलात दुनिया के माहौल को मुतवाज़िन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, रूस एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख, ताकत, बका और जद्दोजहद की एक अलग ही कहानी है। इसकी वसी ज़मीन, सख्त मौसम, ताकतवर फ़ौज और बेपनाह कुदरती वसाइल ने इसे दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर रखा है। रूस के राज, इसकी तारीख और उसकी ताकत आज भी दुनिया के लिए एक दिलचस्प मौजू है और यही वजह है कि रूस को समझना दरअसल दुनिया की सियासत और तारीख को समझने के बराबर है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमें यह भी बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।